Okay, good morning, everyone. Good morning. I hope that you are doing good. Yeah, it's great to be back in teaching your batch. I am happy to teach. I hope you're happy to learn. Okay, that's great. Okay, praise God. Only 2 more weeks to go. And I just want to congratulate all of you because, you are very strong people. Yeah, you have endured and only 2 more weeks left. So may God bless you more and more. So shall we pray? Okay, come, let's pray. We'll commit this week, we'll commit the sessions into God's hands. Let's pray. Abba Father, we thank you, Lord, for this day. Lord, we thank you for the breath of life. Father, we thank you that you are a God who sustains us. The one who has created us with a purpose. Father, we know that you have a great plan for each one of us, Lord. And today we ask that you will uproot every discouragement from our hearts. Lord, you will uproot every distraction from our hearts. Lord, that you will uproot every weakness from our lives. Strengthen us in you, Lord. Help us to be rooted and grounded upon the word of God. Yes, Lord, help us to walk in the presence of God. Yes, Father, strengthen our faith. This week we pray, God, that you will enable us to grow stronger in our faith. Draw us closer to you, Lord. We commit every session into your hands. We bless you, we honor you. हम आपको धन्य कहते हैं, आपकी आदर करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। So this week we will have the course. It is called Ministers Foundation. इस सप्ताह हमारे पास ये पाठ्यक्रम है जिसको है सेवकों का नींव कहते हैं। What is foundation? नींव या बुनियाद क्या है? Or let me ask like this: how important is foundation? या तो मैं ऐसे पूछती हूँ, नींव कितना महत्वपूर्ण है? Just important or very important? Very important. सिर्फ जरूरत है या बहुत ही महत्वपूर्ण है? So if we want to build a 2-story building, यदि आप 2 मंजिला एक इमारत बनाना चाहते हो, we need a strong foundation. तो हमें जो एक मजबूत नींव की जरूरत है। If we want to build a 30-story building, how strong foundation should be? यदि हमारा 20 मंजिला अगर इमारत बनाना है तो उसका नींव कितना मजबूत होने की जरूरत है? Very, very strong. बहुत बहुत मजबूत होने की जरूरत है। Right? So when we see they are building apartments, malls, they will dig huge pit. तो हम देखते हैं कि जब हम मॉल बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं and put lot of like iron pillars. उसके अंदर लोहे के खंभे डालते हैं। And for many months we only see a pit. तो कई महीने तक हम जो है उस गड्ढों को ही देख पाते हैं। And we feel like what such a big pit these people have dug up. तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्या लोग इतना बड़ा गड्ढा खोद के रखे हैं। But by the end of the year there is a beautiful building. लेकिन साल के अंत में जो है वहां पर जो एक सुंदर इमारत होती है। Right? Maybe in 1.5 years there is a tall building.
तो जैसे समझ जाती है एक ऊंचा इमारत आ जाती है। They were able to build so tall because foundation is deep and strong. वो इतना ऊंचा इमारत इसलिए बना पाए क्योंकि उसका नींव जो है गहरा है और मजबूत है। So this course that we are going to learn, it will become a foundation for us as we serve God. तो ये पाठ्यक्रम जो हम सीखने जा रहे हैं वो जो है हमारे लिए ऐसा एक महत्वपूर्ण नींव बनेगी परमेश्वर की सेवकाई करने के We लिए। will learn truth from God's word हम परमेश्वर के वचन से सत्य को सीखेंगे and principles और उसके सिद्धांतों को सीखेंगे which we can apply. जो हम उसको लागू कर सकते हैं। And it will help us to be fruitful. It will help us to be honorable in the ministry that we do. तो वो जो है हमें जो सेवकाई हम करेंगे उसमें जो हमें फलवंत बनाएगी और आदर पूर्ण बनाएगी। Okay, so everybody ready for foundation? क्या आप सब नींव के लिए तैयार है? Okay, you have to tell your neighbor you have to dig. आप अपने पड़ोस में बैठे बोले आपको जो है गहरा खोदने की जरूरत है। Okay, so if everyone is ready, let's start digging. यदि सभी शुरू है तो तैयार है तो चले खोदना शुरू करते हैं। So we are going to look at 3 APC publications. हम जो एपीसी के 3 ऐसे पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। One, it is given to us today, Fulfilling God's Purpose for Your Life. आज जो है हमें दिया गया है ये वाला पुस्तक आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। Online students, you can download it from our resources. It will also be available on the stream page. तो ऑनलाइन छात्रों से हमारा निवेदन है कि आप जो है हमारा स्ट्रीम पेज में भी है, हमारा जो संसाधन है वहां पर भी है, आप उसे डाउनलोड कर लें। Second, we will do a book called Code of Honor. अगला हम जो देखेंगे जो आदर्श संहिता। There is one more third book. It's called Receiving God's Guidance. तीसरा एक पुस्तक भी है जिसे कहते हैं कि परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना। We'll see if time permits, then we will touch on it. Otherwise, you will have to read on your own. यदि हमारे पास समय है तो हम उसको पढ़ेंगे, ये तो आपको अपने आप उसे पढ़ लें। Okay, so today let's begin with this book, Fulfilling God's Purpose for Your Life. आइए आज हम इस किताब से शुरू करें, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। God is a God of plan and purpose. परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो योजना और उद्देश्य का परमेश्वर है। Have you ever done this? क्या आपने कभी ऐसा किए? Whether you're starting to write or paint, यदि आप लिखना शुरू करते हैं या तो रंग भरना शुरू करते हैं or cook, या तो खाना बनाना शुरू करते हैं, you think we'll see what happens, क्या आप ऐसे सोचते हैं? देखते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा, right? So in your head you're not thinking I'm going to make dal. तो आपका दिमाग में आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैं दाल बनाने जा रही हूँ। You're just starting to cook whatever is there in the house. We will make that. तो हम ऐसा खाना बनाना शुरू करते हैं, घर पे जो कुछ भी है हम उसको बनाते हैं। No plan. कोई योजना नहीं। So if dal is there, दाल वहां पर है, you make dal. तो आप क्या करते हैं? दाल लेकर के उसको दाल Right? बनाते हैं। So or you have some other ingredient, you put that, you make something. और कुछ सामग्री है, आप उसको डालते हैं और दाल बनाते हैं। There is no plan. उसमें कोई योजना नहीं। Okay, we all do that, right? Sometimes we do that. हम सभी कभी कभी ऐसा करते हैं। So does God do that? क्या परमेश्वर ऐसा करते हैं? Does God just make something? क्या ऐसे ही कुछ बनाते हैं? I have too much time, I will make someone. तो मेरे पास बहुत समय है, मैं किसी को बना दूंगा। And he made you. तो उन्होंने आपको बनाया। God doesn't work like that. क्या परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करते हैं? The Bible says that there are plans in the heart of the Lord. तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के मन में योजनाएं हैं। Psalm 33 verse 11. भजन संहिता 33 के 11 वचन। I'm on page 1 in the notes. हिंदी के पुस्तक में भी पेज 1 पर है। So it says, the counsel of the Lord stands forever. तो यह वचन बता रही है कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। The plans of his heart to all generations. उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। So God is a God of plan.
तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, योजनाओं का परमेश्वर। Whatever He has created it with a plan. जो कुछ भी उन्होंने, जिसकी भी उन्होंने सृष्टि की, वो सभी चीजों को वो योजना के साथ ही बनाए हैं। We also see in other scriptures that He is a God of counsel. तो हम दूसरे वचनों को भी देखते हैं कि वो जो है ऐसा परमेश्वर, जो सलाह देने वाला परमेश्वर या परामर्श देने वाला परमेश्वर। And Isaiah 46 and verse 10 says that He declares the end from the beginning. ऐसा 46 का 10वां वचन ऐसा बता रहे हैं कि वो जो अंत की बात आदि में ही बता देता है। You know, when sometimes we read a book or watch a movie, कभी कभी हम किसी किताब को पढ़ते हैं या तो एक पिक्चर को देखते हैं। if it is it's a mystery story. यदि वो कहानी जो है रहस्य से भरा हुआ हो, And if somebody tells you in the beginning itself who is the thief, तो शुरू में ही कोई आपको बता देता है कि चोर कौन है, you're so upset, right? आप बहुत दुखी हो जाएंगे। सही है, Because they didn't let you find out. क्योंकि वो जो है आपको जो है उससे प्राप्त करने के लिए या उससे जानने के लिए आपको नहीं छोड़े। But they told you the end in the beginning. क्योंकि उन्होंने जो है अंत को जो है शुरुआत में ही बोल दिए। They already knew the end. क्योंकि उनको जो है पहले से अंत के बारे में पता था। But when we consider God, you know, God knows the end of this world. क्योंकि जब परमेश्वर के बारे में आती है तो परमेश्वर जो इस संसार का अंत को जानते हैं। And the God who knows the end of this world also knows the end of your life and my life. ऐसा एक परमेश्वर जो संसार का अंत को जानता है, वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंत को भी जानता है। So if we pray to God and say, God, you know my life, you please talk to me about it. तो यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को जानते हैं, इसलिए कृपया मुझसे बात कीजिए, Reveal to me. मुझे प्रकट कीजिए, God will reveal. परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे। So He is able to declare the end from the beginning. तो वो ऐसा एक योग्य परमेश्वर है जो आदि को जो है, अंत को जो है आदि में ही घोषणा करता Right? है। This is what Isaiah 46 and verse 10 tell us. तो यही है इसाया 46 के 10वां वचन हमें बताता है। Now, when we think about God, let's understand that God has a purpose. जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो इसको समझें कि परमेश्वर के पास उद्देश्य है। So, if we take this, this bottle, यदि आप इस बॉटल को ले लें, whoever made this bottle, what was the purpose they had in mind? जिन्होंने भी इस बॉटल को बनाया, उनके मन में क्या इसका उद्देश्य था? It should hold water, तो इसके अंदर ताकि पानी समा सके। right? So, we know that, they made it with the goal. तो In हम their जानते हैं कि वो जो है एक लक्ष्य के साथ इसे बनाए हैं। In the same way, God has a goal or a purpose for the world. इसी प्रकार से परमेश्वर के पास जो है एक लक्ष्य और उद्देश्य है संसार के लिए, And He has a goal, a purpose for each one of our lives. तो हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास लक्ष्य और उद्देश्य है। So I will just read one scripture to talk about this general purpose that God has for the world. तो मैं एक वचन को पढ़ूंगी जो परमेश्वर के पास संसार के लिए एक सामान्य उद्देश्य है। On page 2, there is a passage from Ephesians chapter 3 and verse 11. One of us can read it in English and another person can please read it in Hindi. इफिसियों 3 अध्याय के 11 वचन, कोई इंग्लिश में एक जन पढ़े और हिंदी में एक जन पढ़े। दो नंबर पेज पर आपके नोट्स पे ही है। उस सनातन मंशा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, according to eternal purpose which he purposed, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. Yes. So here we can see that God has an eternal purpose यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास जो अनंत उद्देश्य है, and He accomplished it in Jesus Christ our Lord. उसे जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह में पूरा किए हैं। So this is talking about a
master plan which God has for the world. तो ये जो है परमेश्वर के पास जो संसार के लिए प्रमुख योजना थी उसके बारे में बात करती है। God's eternal purpose is that mankind should be saved through Jesus Christ. परमेश्वर का जो उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य जो पूरा मानव जाति जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। So that is the plan that God had for the world that he created. यही जो योजना है परमेश्वर जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की उसका योजना यही है। He wants to redeem all things through the sacrifice of Jesus on the cross. वे जो सभी चीजों को जो है यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए बलिदान के द्वारा छुड़ाना चाहते थे। And God also thinks that this is a good thing to save through the Lord Jesus Christ. तो परमेश्वर ने ये सोचा कि ये अच्छा है कि यीशु मसीह के द्वारा संसार के उद्धार करें। So we see one more passage in our notes from 1 Timothy 2 verses 3 and 4. और एक वचन हम देखेंगे हमारा नोट से पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय के 3 और 4 वचन। And it says that it is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. तो ये बताएगा कि क्यों हमारा उपदेश जैसा परमेश्वर को हमारे योग्य ठहराए सुसमाचार सौंपा वही वर्णन करता है, मनुष्य की नहीं परमेश्वर की। 1 Timothy 2, 3 and 4. I'm on page 2 in the English notes. This one. In Hindi that's not like that. Oh, it's written something else? Yes. परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है प्रसन्न करते हैं। Okay, anyway, so let's just recap the main themes that we spoke so far. अभी तक हमने जो मुख्य जो बात की है उसके बारे में फिर एक बार सोचें। Okay, can you tell me what did we talk about? क्या आप बता सकते हैं हम किसके बारे में बात किए? Online students, please feel free to share also. ऑनलाइन विद्यार्थियों से भी हम कहते हैं कि आप जो है अपना विचार बांट सकते हैं। What did we say till now? अभी तक हम क्या कह रहे थे? Yes, God has a plan. परमेश्वर के पास योजना है। Yes. Yeah. Yes, God has a plan. God has a purpose. परमेश्वर के पास योजना है और उद्देश्य है। God is a God of plan and design. परमेश्वर ऐसे एक परमेश्वर है जिनके पास योजना है और परिकल्पना है। God has a purpose for the world. परमेश्वर के पास संसार के लिए उद्देश्य है। And his purpose is that the world should be saved through Jesus Christ. और उनका उद्देश्य है कि संसार जो है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। It is a good and acceptable thing in the sight of God for everyone to come to know Jesus Christ. परमेश्वर के दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य बात है कि हर एक जन जो है परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के ज्ञान में आए। So now are we clear that God has a general purpose for the world? क्या अभी हम ये स्पष्ट है परमेश्वर के पास संसार के लिए एक सामान्य योजना है? Yes? Okay, great. Now, let's understand that God has a specific plan for our life. तो इस बात को समझें कि अभी हम इसको समझें परमेश्वर के पास हमारे लिए एक विशेष योजना है। Let's read from Psalm 139 and verse 16. तो हम भजन संहिता 139 के 16 वचन पढ़ेंगे। Your eyes saw my substance, but being yet unformed, and in your book they all were written. The days fashioned for me, where has it there were none of them. Okay. Yes, thank you. धन्यवाद आपका। तेरी आंखों ने मेरे बेडो तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Okay, so we see here that God watches over us. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी ओर देखते रहते हैं। From the time we were conceived in our mother's womb, उस समय से जब हम अपने माँ के गर्भ में आए थे, every stage that we have been through in life, हर एक हमारे जीवन में हर एक स्तर जो हम गुजरे हैं, in fact, every day of our lives is before the Lord. It is written
in his book of days. तो ये असल में जो है हमारा जीवन के हर एक दिन जो है परमेश्वर के पुस्तक में लिखा हुआ है। He created us and he knows the blueprint of our life. वो उन्होंने हमें हमारी सृष्टि की, हमारे जीवन का रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट उनके पास है। So, people ask this question, what is the purpose of my life? तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। Even today, you find people, maybe they are working in the IT sector. तो आज भी जो ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं जो आईटी में काम करते हैं। They may be earning very well. वो बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। And yet, even in, not just that sector, but many other sectors, people still ask the question, what is the purpose of my life? केवल आईटी में काम करने वाले ही नहीं, और जगह में भी काम करने वाले सभी लोग इस तरह के एक सवाल पूछते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। So having a great career is wonderful. बहुत अच्छा जीविका होना बहुत ही अद्भुत बात है। And yet people are asking the question, what is the purpose of my life? फिर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। We will never get an answer to this question without God. हम जो परमेश्वर के बिना इस सवाल का जवाब कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। So we know that the people of the world, they go searching. तो हम जानते हैं कि संसार के लोग जो है इसके खोज में जाते हैं। They'll search in many philosophies. बहुत सारे तत्वज्ञानों के द्वारा, तत्व विज्ञान के द्वारा वे ढूंढते Or हैं। maybe they will travel, या तो सफर करते हैं, or यात्रा they करते हैं, do meditation. या तो मनन करते हैं। Somehow, if I do all these things, maybe I will know the reason why I was put on this earth. तो ऐसा सब करते हुए शायद मुझे पता लगेगा कि मुझे क्यों इस धरती पर रखा गया है। But the Bible says, without God, you and I can never understand the purpose of our life. लेकिन बाइबल बताती है कि आप और मैं परमेश्वर बिना कभी भी हमारा जीवन का उद्देश्य को जान नहीं सकते The हैं। only person who has created us and knows all the days of our life is God. एक ही व्यक्ति जिन्होंने हमें हमारी सृष्टि की, हमारे जीवन के हर एक दिन को जानते हैं, वो है परमेश्वर। So I have to ask God if I need to understand why am I here on the earth. यदि मुझे ये जानना है, समझना है कि मैं इस पृथ्वी पर कौन है, इसके लिए मुझे परमेश्वर से पूछना होगा। We can consider Apostle Paul. हम जो है प्रेरित पौलुस के बारे में विचार कर सकते हैं। Paul was a persecutor, प्रेरित जो पौलुस जो है सताने वाला था, but once he encountered Jesus Christ, लेकिन जब एक बार वो यीशु मसीह से मुलाकात कर लिया, he had a transformation. उसके अंदर जो परिवर्तन आई। And then he makes this statement. He says in Philippians 3 and verse 12 that the purpose of my life is to lay a hold of God's purpose. तो यहाँ पौलुस उसके बाद ये वाक्यांश को बता रहा है कि मेरा जीवन का उद्देश्य जो है यीशु मसीह के उद्देश्य को पकड़ना। Okay, so can somebody read this? Philippians 3 verse 12. क्या कोई पढ़ सकते हैं? फिलिपियों 3 अध्याय का 12 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Okay, good. In English. Not that I have already attained or I am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold for me. Okay, great. So here we notice that there is a reason why God chose Paul. यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है पौलुस को क्यों चुने हैं, उसका एक कारण है। He says, Christ Jesus has also laid hold of me. तो बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी मुझे पकड़ा है। Today, Christ Jesus has laid hold of you. आज जो है प्रभु यीशु जो है आपको पकड़े हैं। He has laid hold of me. तो उन्होंने मुझे पकड़े हैं। But what does Paul say? लेकिन पौलुस क्या बता रहे हैं? That I may lay hold तो मैं उसको पकड़ूं for which Christ Jesus has laid hold of me.
और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चलाता हूँ जिससे यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। So there is a reason why Christ Jesus has laid hold of me. तो ये कारण है क्यों यीशु मसीह मुझे पकड़े हैं। Now in this book we are going to try to understand what is that purpose for specifically for each one of us. इस पुस्तक में जो हम ये देखने जा रहे हैं कि हम प्रत्येक के लिए जो वो विशेष उद्देश्य क्या है। Now I don't promise that at the end of this week you will know your purpose. मैं इस बात की प्रतिज्ञा नहीं कर रही हूँ कि सप्ताह के अंत तक जो है आप अपना उद्देश्य को जान No, I लोगे। know some students who till today, years ago we did this, until today they say, "Ma'am, I don't understand my purpose." तो मेरे पास ऐसे भी कुछ विद्यार्थी है, कई साल पहले इस पुस्तक को पढ़े हैं, आज भी वो कहते हैं कि मैम अभी तक मुझे मेरा जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। So we have to journey with God. That will be our homework. तो हमें जो है परमेश्वर के साथ यात्रा करने की जरूरत है, ये हमारा गृह कार्य है। But we can show from God's word where this purpose is pointing to. तो हम परमेश्वर के वचन से ये बता सकते हैं कि ये जो उद्देश्य कहाँ संकेत कर रही है। So by the end of the week, maybe you will be able to tell why Christ Jesus has laid hold of you. तो शायद इस सप्ताह के अंत तक आप ये बता पाओगे कि परमेश्वर क्यों, यीशु मसीह क्यों आपको पकड़े हैं। Okay, so even if we don't get the exact answer of why, or what my purpose is, तब भी जबकि आपको जो है बिल्कुल सटीक उद्देश्य क्या है नहीं जान पाने से भी Ephesians chapter 2 verse 10, it says that we have been created for good works in Christ Jesus. तो इफिसियों दूसरा अध्याय का 10वां वचन ये बताता है कि परमेश्वर जो है हमें जो उस भले कामों को करने के लिए यीशु मसीह में पकड़ा है। So please remember that God has created you for good works. कृपया इसको याद रखें कि परमेश्वर जो है आपको इसलिए सृष्टि की है कि भले कामों को करने के लिए। So there is nobody here who has been created for destruction. इनमें इधर के कोई भी जो है इसके लिए सृजे न गए कि आप जो विनाश को उत्पन्न न So करें। can you just keep your hand on your heart and say, I have been created for good works. क्या आप अपने हृदय में हाथ रखकर कह सकते हैं कि मैं जो है भले काम करने के लिए सृजे गया हूँ या सृजे गई हूँ। Amen. So do you believe it that God is going to perform good works through you? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके द्वारा भले कामों को करने जा रहे हैं? Amen. Yes. So maybe sometimes Satan will lie in our minds शायद कभी कभी शैतान जो है हमारे दिमाग में झूठ बोल सकता है, and say you are good for nothing. बोले कि तुम किसी काम के नहीं हो, Everything you touch is a failure. जो भी तुम छूते हो वो असफल ही होता है। But at that time you speak Ephesians 2:10 उस समय आप जो है इफिसियों 2:10 वचन को बोले हैं and declare, I have been created for good works in Christ Jesus. तो आप इस बात की घोषणा करें कि भले कामों के लिए सृजे गया हूँ यीशु मसीह Many में। good things are going to come out of my life. मेरे जीवन से कई सारे भले काम निकलेंगे। God will work through me to bless other people. परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करेंगे दूसरों को आशीष देने के My लिए। life is going to be good. मेरा जीवन जो है अच्छा होने जा रहा है। Amen. आमीन। So that is the reason why God has created us. वही कारण है परमेश्वर हमें सृजे हैं। So you remember in the book of Genesis, क्या आपको याद है उत्पत्ति के पुस्तक में when God created the world, जब परमेश्वर संसार की सृष्टि की, any one time did he say it is bad? क्या किसी एक बार उन्होंने ऐसा कहा क्या ये बहुत ही बुरा है? Never. कभी नहीं। But we are the ones, we look at ourselves in the mirror and say, so bad. तो हम ही ऐसे एक लोग हैं जो आईने पे देख के बोलते हैं कि अरे बहुत ही बुरा है। We say, the other person is better. Why am I like this? तो दूसरा व्यक्ति तो बेहतर है, मैं क्यों ऐसा हूँ? But God never said that. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। God is always saying, it is good. परमेश्वर हमेशा ही बताने हैं कि ये अच्छा है, You are good. आप अच्छे हो, You're created good. आप जो अच्छे सृजे गए हो। So in God's design, there is no problem. It's perfect. परमेश्वर की परिकल्पना में कोई भी गलत नहीं हो, बिल्कुल सिद्ध है। And in his purpose, he has created us for good works.
और उनके उद्देश्य में उन्होंने जो हमें भले काम के लिए सृजे हैं। Amen. आमीन। The only thing that is required is you and I have to discover that purpose. केवल एक ही चीज की जरूरत है, आपको और मुझे जो उसकी खोज करने की जरूरत है। So now we've understood God is a God of plan. अभी हम इस बात को समझ गए कि परमेश्वर जो है योजना का परमेश्वर है। He has a general purpose for the world. उसको संसार के लिए उसके पास सामान्य He उद्देश्य है, has a specific purpose for me. वो मेरे लिए उनके पास विशिष्ट उद्देश्य है। Now I have to find out that purpose. और मुझे जो है उस उद्देश्य को पाने की जरूरत है। Apostle Paul calls the purpose of his life as a holy calling. तो प्रेरित पौलुस जो है अपना जीवन के उस उद्देश्य को बोल रहे कि पवित्र बुलाहट। Can we read from 2 Timothy chapter 1 and verse 9 on page 3? पेज नंबर 3 पर है, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का 9वां वचन। क्या कोई पढ़ सकते हैं? जिसने हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में अनादि काल से हम पर हुआ है। who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Amen. So here we can see that God, Christ Jesus has saved us, तो यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार किए, called us हमें बुलाए हैं with a holy calling. एक पवित्र बुलाहट से। Now notice, according to his own purpose and grace. और इसको ध्यान दें, अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार। Today, if God gives us a choice, यदि आज हमारे परमेश्वर हमें चुनाव देते हैं, where he says, not according to my purpose, but you choose. तो जहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा उद्देश्य के अनुसार नहीं, लेकिन आप जो है उसको चुनो, So you can become whatever you want. तो तब आप जो है जो कुछ आप चाहते हैं वो बन जाते हैं। What we might choose. तो हमें क्या चुनने की जरूरत है? So, if there is no purpose of God, I might say, okay, I want to be a movie star. तो यदि परमेश्वर का उद्देश्य नहीं तो फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे जो है फिल्म में जो Yeah. हीरोइन बनना है, Or you would say, I want to become a sports star. या तो आप बोलेंगे कि खेल का खिलाड़ी बनना Or चाहता हूँ, I want to be a big politician. या तो एक बड़ा राजनीतिक नेता बनना चाहता हूँ। So, because there is no purpose of God, we can do whatever we want to do. क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य नहीं, इसलिए हम जो कुछ हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। But how has God called us? लेकिन परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाए हैं? According to his own purpose. उन्होंने अपनी उद्देश्य के अनुसार हमें बुलाए हैं। So I should not live my life according to my own purpose. तो मुझे जो मेरे जीवन को जो है मेरे उद्देश्य के अनुसार जीना नहीं चाहिए। If I want to be a billionaire, that मुझे is my own purpose. यदि मुझे एक बहुत बड़ा धनवान बनना है तो ये मेरा अपना उद्देश्य होगा। But here Paul is saying, according to his own purpose. लेकिन यहाँ पौलुस बता रहा है कि उसके अपनी उद्देश्य के अनुसार। So God, what is that purpose which you have for me? तो परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आपका उद्देश्य मेरे लिए क्या है? And he is saying, God has called us with a holy calling. और वो बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमें पवित्र बुलाहट से बुलाए हैं। So I have to live my life according to his purpose तो मुझे जो है मेरे जीवन को उनके उद्देश्य के अनुसार जीने की and जरूरत है according to his holy calling. और उनके पवित्र बुलाहट के अनुसार जीने की जरूरत है। God's calling is always holy. परमेश्वर के बुलाहट हमेशा ही पवित्र होता है, It is never unholy. वो कभी भी अपवित्र नहीं होता It's है, very pure and perfect वो सिद्ध और एकदम शुद्ध है। because God has a very beautiful plan for each one of us. क्योंकि परमेश्वर के पास हम प्रत्येक के लिए बहुत ही सुंदर योजना है। And one more word in that verse is according to his own purpose and grace. तो और एक शब्द वहां पर है, उनके उद्देश्य यानी मनसा और उनके अनुग्रह के अनुसार। So wherever there is a calling, जहाँ कहीं भी वहाँ बुलाहट है, there will be grace. वहाँ जो है अनुग्रह भी होगा। So when God told Moses, जब परमेश्वर मूसा से कहें, I want you to lead thousands of people, मैं जो हजारों लोगों का तुम अगुवाई करे ऐसा चाहता हूँ, Moses didn't know how he's going to do it.
तो मूसा ये नहीं जानता था कि परमेश्वर कैसे करने जा रहा है, but God gave him the ability. लेकिन परमेश्वर उसको क्षमता दिए, God gave him the empowerment. उसको सामर्थ दिए। So whenever God calls, he will give grace. जब भी परमेश्वर बुलाते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देंगे। He will never send us without his empowering. परमेश्वर कभी भी हमें उनके सामर्थ के बिना हमें नहीं भेजेंगे। So don't be afraid. इसलिए डरे ना। If you sense God has called me, always be confident that he is also giving me the grace to do it. तो जब भी आप परमेश्वर को, आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आपको डरने की जरूरत है। परमेश्वर हमेशा ही वो करने की सामर्थ आपको देंगे। Okay, so can we all say God has called me? क्या हम सब कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? God, yes, God has called me with a holy calling. परमेश्वर मुझे जो है पवित्र बुलाहट से बुलाए हैं। God has called me according to his own purpose. परमेश्वर मुझे अपनी उद्देश्य के अनुसार बुलाए हैं। And God is giving me grace to fulfill his purpose. परमेश्वर मुझे उनके उद्देश्य पूरा करने के लिए अनुग्रह दे रहे हैं। Amen? Right? So do you believe it? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? God has called us. परमेश्वर हमें बुलाए हैं, He gives us the grace. वो हमें अनुग्रह देते हैं। So we will talk more about how to find out this specific purpose. हम और अधिक जानेंगे कैसे इस विशिष्ट उद्देश्य को हम जान सकते हैं। But before that, let us again talk about God's plans being good. तो उससे पहले हम इसको भी बात करें कि परमेश्वर का जो योजना है भली है। Does anyone know Jeremiah 29:11 by heart? क्या किसी को ये कंठस्थ है यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 वचन? Does anyone want to say it? Yeah. मराठी, okay, you can यहोवा की आवाज़ है कि जो कम यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 वचन। क्योंकि यहोवा नहीं, बिना की देखे आता है क्या पूछे थे मैम? Yeah, whoever knows it by heart. तुझ्याविषयी माझ्या मनात ज्या योजना आहेत त्या तुझ्यासाठी हिताच्या आहेत, अनिष्टाच्या नाही आहेत आणि त्या तुझ्याविषयी भविष्य काळाच्या सुस्थितीच्या आहेत. Okay. Yeah, I need interpretation of tongues for me. But anyway, I'm sure brother said it correctly in Marathi. Anyone else? Any other language you want to try? कोई और किसी भी भाषा में कोशिश करना चाहते हैं? Jeremiah 29:11. यिर्मयाह के 29वें अध्याय का 11 वचन। Mike, हाँ, माइक ले लीजिए can you please pass? प्लीज, माइक पीछे दे दीजिए। एक्चुअली पूरा नहीं आता, जितना आता है बता It's दे okay. रहा हूँ। You can try. क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय जो भी कल्पना की है वो हानि की नहीं कुशल की है, ये परमेश्वर उसमें कहता है। Okay. Yes. So God has good plans. परमेश्वर के पास अच्छी योजनाएं हैं। Anyone else? कोई और? Okay. Mike में. ये इधर। जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। Amen. So we know that God has good plans for us. हम जानते हैं परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं। Has anyone thought that if I say, God, I surrender my life to you, I don't know what God is going to do? क्या किसी ने ऐसा कहा है कि यदि मैं परमेश्वर के पास अपना जीवन को सौंपूं तो मुझे नहीं पता है परमेश्वर क्या करने जाएंगे? He might send me to a village somewhere far away. तो वो जो है किसी गांव में बहुत दूर मुझे भेज देंगे। Maybe I'll be struggling. शायद मैं संघर्ष करूंगी। You know, sometimes people think like that. कभी कभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं, But what does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती है? God's plans for us are good. परमेश्वर की योजना हमारे लिए भला है।
Our parents have good plans for us. हमारे माता पिता के पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं You know, हैं। all parents want their children to study well, सारे माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है बहुत अच्छा पढ़ें, settle down well. बहुत अच्छे से वो उस जीवन में So स्थिर हो जाए। if parents have such good plans, यदि माता पिता के पास ऐसे अच्छी योजनाएं हैं, Bible says God has very good plans. बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास बहुत ही अच्छा योजना है। And God is saying, for my plans towards you are good. और बाइबल हमें परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरी योजना तुम्हारे प्रति जो है भला है, Not to harm you, तुम्हें हानि देने करने के लिए नहीं, but to prosper you, वरन जो है कुशल करने के लिए, तो आपकी उन्नति करने के to लिए है, give you hope, आपको आशा देने के to लिए give you a good future. और आपके लिए एक अच्छा भविष्य देने के लिए। So we need to cooperate with God's plan and purpose for our lives. हमें जो है परमेश्वर का जो योजना और उद्देश्य हमारे जीवन के प्रति है, उसके साथ सहयोग करने की जरूरत है। Because if I want to be the best version of myself, यदि मैं जो है अपने आप का अच्छा बेहतर संस्करण चाहती हूँ, then I need to be in the purpose of God. तो मुझे जो है परमेश्वर के उद्देश्य में होने की जरूरत है। That is the बest way to live my life. वो ये सबसे सर्वोत्तम तरीका मेरा जीवन जीने का। And many of you know there's one more scripture, Romans 8:28. हम में से कई लोग इस वचन को जानते हैं, रोमियो 8वें अध्याय के 28वां वचन। For all things work together for good. तो सारी चीजें, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, To those who love the Lord और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके and लिए, are called according to his purpose. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए So गए हैं। God is working all things together for my good. तो परमेश्वर जो है सारे बातों को मिलाकर मेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। Now we know some things may have happened in our lives which have hurt us. तो हम जानते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो हमें हानि पहुंचाई है, But even in those things, God can still bring something good. उस जो हमें चोट पहुंचाई उस चीज में से भी परमेश्वर जो है कुछ अच्छा को ला सकते हैं। So our God can bring good things out of the difficulties that we have gone through. तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कठिनाइयों में से हम गए हैं, उस कठिनाइयों में से कुछ अच्छा को ला सकते हैं। So it is so encouraging to know that we serve a good God. तो ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात है कि ये जानना है कि हम जो है ऐसा एक अच्छा परमेश्वर का सेवा करते हैं। He has a good plan. उसके पास अच्छी योजनाएं हैं, He has a good purpose. उनके पास अच्छी उद्देश्य है, His calling for me is good. उनका बुलाहट मेरे लिए अच्छा है। No matter what I have been through in my life, He will turn it around for my good. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने जीवन में किस में से होकर गई हूँ, लेकिन उसको परमेश्वर जो है भलाई में बदल देगा। So now what am I supposed to do? तो मुझे क्या करना होगा? The Bible calls us to cooperate with God. बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर के साथ सहयोग करें। God has good plans. परमेश्वर के पास अच्छी योजना है, I have to cooperate. मुझे जो है उनके साथ सहयोग देने की Now you जरूरत है। think about Saul. अब साउल के बारे में सोचें, Saul in the Old Testament. पुराना नियम का साउल। So in 1 Samuel we read that he was anointed to be the first king of Israel. पहला शमूएल में हम पढ़ते हैं कि जो शाऊल राजा जो है इस्राएल का पहला राजा के तौर पे अभिषेक किया गया। But what happened? लेकिन क्या हुआ? What happened in his life? उसके जीवन में क्या हुआ? Yes. So he was disobedient. वो अनाज्ञाकारिता किया, He was rebellious. वो बहुत ही विद्रोह किया, He was disrespectful towards God's purpose. परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति वो अनादर रहा। Then in the Bible, we read God was very sad. तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत ही दुखी हो गए थे। He regretted that Was- he anointed Saul to be king. तो वो पश्चाताप करने लगे कि मैंने साउल को राजा बना दिया। So do you think God had a good plan for Saul, King Saul? क्या आप ऐसा सोचते हैं परमेश्वर के पास साउल राजा के लिए अच्छा योजना था? Yes. हाँ, Even for King Saul, there was a good plan. साउल राजा के लिए भी परमेश्वर के पास अच्छी योजना थी। But what was the problem?
लेकिन समस्या क्या थी? Saul did not cooperate. साउल जो है उसका सहयोग नहीं किया। So God has a good plan, but He wants us to cooperate. परमेश्वर के पास अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके साथ सहयोग करें। It's only then that we are going to fulfill His purpose. तभी जो है हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। Let's read from 1 Corinthians chapter 3 and verse 9. I'm on page 4. हिंदी में पेज 5 पर है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 9वां वचन। Yes. इंग्लिश में कोई पढ़े? For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Amen. So here we see that God has called us to be co-workers. यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमें सहकर्मी होने के लिए बुलाए हैं। The many things in this world God can do. इस संसार में कई सारे चीज जो है परमेश्वर कर सकते हैं। Many tasks He can accomplish. बहुत सारे कार्य काम को जो है वो पूरा कर सकते हैं। But God has made us co-workers. लेकिन परमेश्वर जो है हमें उनका सहकर्मी बनाए हैं। We know the Great Commission where we are supposed to go and preach the gospel to the whole world. तो हम एक महान आज्ञा के बारे में जानते हैं, जहाँ बताया गया कि हमें जो पूरा संसार में जाकर चेले बनाए। So can God not do it on His own? क्या परमेश्वर खुद इसे नहीं कर सकते? He absolutely can. बिल्कुल वो कर सकते हैं। But what has He said in His word? लेकिन उन्होंने अपने वचन में क्या बताए हैं? Every disciple हर एक चेला will fulfill the Great Commission. तो जो है वो इसी महान आज्ञा को पूरा करेगा। Because we are God's co-workers. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। God wants us to work with Him to fulfill His purpose. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर कार्य करें उनकी योजना को पूरा करने के लिए। So that also means that God alone will not work, but He has given me responsibility to make certain choices. तो ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर अकेले नहीं कर सकते, परमेश्वर ने हमें ऐसा दिए कि हम उनके साथ सहकर्मी बनकर उसे पूरा करें। So it matters what we choose. तो इस बहुत ही इसमें परवाह होता है कि हम क्या चुनते हैं। And if we are walking right with God, then we will fulfill His purpose. जब हम परमेश्वर के साथ सही चलते हैं तब जो है हम उनके उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। Let's understand a few more things. और कुछ चीजों को समझें। God will prepare us to fulfill His plan and purpose. परमेश्वर जो है उनके उद्देश्य और योजना को पूरा करने के लिए हमें तैयार करते हैं। So sometimes when we recognize God's call कभी कभी हम परमेश्वर के बुलाहट को पहचानते हैं and we say, God, why are you calling me? और हम कहते हैं कि परमेश्वर आप क्यों मुझे बुला रहे हैं? But God knows that you are the right person. कि पर परमेश्वर जानते हैं कि आप ही सही व्यक्ति हो। Think about David. दाऊद के बारे में सोचिए। David was a teenager दाऊद जो है किशोर अवस्था में था when he went to fight Goliath. जब गुलियात से लड़ने गया था। God put it in his heart to fight the giant. परमेश्वर ने इसके हृदय में ऐसा रखे कि उस दानव से वो लड़े। But David was prepared. लेकिन दाऊद जो है तैयार किया गया। Not by training in the army, ये नहीं कि सेना में रहकर वो प्रशिक्षण पाया, but when he was taking care of his father's sheep, he has already killed lion and bear. तो जब अपने पिता का जो भेड़ों को संभाल रहा था उस समय जो वो सिंह, शेर और भालू को मारा। That is his experience. वो उसका अनुभव है। And that was enough for him to kill Goliath. वो उसके लिए काफी था कि गुलियात को मारने के लिए। So God had already prepared David before he entered a battle with Goliath. तो परमेश्वर जो है दाऊद को पहले से ही तैयार किए कि वो जो है युद्ध भूमि में गुलियात से लड़ने के लिए प्रवेश करें उससे पहले। God does the same thing in our lives. परमेश्वर इसी कार्य को हमारे जीवन में भी करते हैं। So for the purpose that he has for us, he will train us, he will prepare us. तो जो उद्देश्य वो हमारे लिए रखें उसके लिए वो जो है हमें तैयार करेंगे, हमें प्रशिक्षित करेंगे। So when the task comes, when the assignment comes, God already makes us ready for it.
जब वो काम आती है, जो उस कार्य है आती है, उसको जो पहले से ही परमेश्वर हमें तैयार रखते हैं। It's not that we don't make mistakes, ये नहीं कि हम गलती नहीं करते हैं, but even if we make mistakes, but we repent and come back to God, तब भी जब हम पाप करते हैं और मन फिराते हैं और परमेश्वर के पास वापस आते हैं, God is able to cleanse us. परमेश्वर जो हमें शुद्ध करने के लिए योग्य है And He is able to help us fulfill the purpose which He has for us. और वो उद्देश्य जो उन्होंने हमारे लिए रखे हैं उसको पूरा करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए वो योग्य है। Even in the case of King David, राजा दाऊद के बारे में भी, you remember he fell in adultery. वो जो व्यभिचार में गिर जाता है, So at that time, God could have rejected him. उस समय परमेश्वर उसका छोड़ सकता था, तिरस्कार कर सकता था, But David repents. लेकिन दाऊद जो है मन फिराता है, He walks humbly before God. वो परमेश्वर के सामने नम्रता से चलता है। Then what does God do? तो परमेश्वर क्या किए? God puts him back in the purpose. परमेश्वर दाऊद को फिर से उद्देश्य में रखे हैं। Mistake happened. Mistake happened, गलती हुई, but God did not give up on David. लेकिन परमेश्वर जो है दाऊद के ऊपर या दाऊद से हार नहीं मान लिए। In the same way in our life, maybe mistakes have happened, तो हम इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी गलतियां हुई होगी, but God can still bring us back and help us to fulfill the plan and purpose that He has for तब us. भी परमेश्वर हमें वापस लेकर उनके जो उद्देश्य हमारे जीवन के प्रति रखे हैं उसे पूरा करने के लिए सहायता कर सकते हैं। Okay, so with that thought, let's go for a break. इसके साथ हम ब्रेक में जाएं, I will come back and talk more. वापस आकर इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। Thank you.